गुड मॉर्निंग गाइस। 10:40 को स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बाकी लोगों को ऐड कर लेते हैं पहले। Yes, sir. Where is everybody on your video? कविता आइटनरी करी थी तैयारी? हाँ सर, तैयारी की है मैंने मध्य प्रदेश की। करी है तो पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, फिर लेक्चर का जो बटा आज का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। यू कैन कंटिन्यू। ओके सर। ओके, सो मध्य प्रदेश आइटनरी 8 days की है। तो day 1 will start from Delhi to Indore. Day 1 will arrive in Indore by flight. So it will take 1 hour 25 minutes. And it is morning flight, तो हम सुबह जल्दी 7 बजे ही पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद we'll check in at hotel and then we'll visit Rajwada Palace, which is famous for its architect and the garden area, and it is built by the Maratha dynasty. और फिर उसके बाद we'll go to the second destination, which is Lal Bagh Palace. And after visiting Lal Bagh Palace, then our third destination will be in the evening, that is night, that will be visiting Sarafa Market, which is famous for local dish food over there, and which is also famous for street food area. So, and then overnight stay in Indore. And day 2 will travel to Indore to Ujjain. उज्जैन से we have to उज्जैन से हमने वापस फिर इंदौर ही आना है, because उज्जैन सिर्फ 1 hour की दूरी पर है इंदौर से. So day 2 will first visit the Mahakaleshwar temple in the morning itself, that is 10 a.m.
Then afterwards, दर्शन होने के बाद will visit to Jantar Mantar. Jantar, it is a place similar to like उदयपुर में जैसे जंतर मंतर है, वैसे यहाँ पे भी है उज्जैन में. We'll visit that. फिर then again back to Indore and overnight stay in Indore. Then day 3 will travel from Indore to Bhopal, with 3 hours का difference, and by car will travel. मैंने मॉर्निंग का टाइम ट्रैवलिंग का मतलब 7 o'clock का ही रखा है. विल ट्रैवल बाय कार 7 o'clock, देन विल रीच एट 10 AM इन इंदौर, सॉरी भोपाल. फिर चेक इन एट होटल. The first thing we'll visit is Lakshmi Narayan Temple. It is built by the one of the industrialists of India, Birla ji. So we'll visit Lakshmi Narayan Temple, which is dedicated to goddess Lakshmi and Vishnu. Then we'll और साथ ही में वहाँ पे बिरला म्यूजियम भी है, स्मॉल बिरला म्यूजियम created and which is famous for scenic beauty. Then in evening we'll visit in Bhopal the famous Upper Lake destination, which is also famous for boating and sunset. मॉर्निंग व्यू के लिए भी फेमस है ये, सनराइज के लिए भी और सनसेट के लिए भी. So in evening we'll visit, and it is good for scenic beauty also, and एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी होते हैं इसमें, जैसे मोटर बाइक और पैडलिंग वगैरह भी आप हायर कर सकते हो अगर आपको करना है तो. देन ओके ओके देन बैक टू होटल. इंदौर में ओवरनाइट स्टे इन इंदौर. देन डे 4 will travel to Bhopal to Jabalpur. Now Bhopal to Jabalpur, sir. Now Bhopal to Jabalpur, we have one destination on way, that is Sanchi. जब हम भोपाल टू सांची ट्रैवल भोपाल टू जबलपुर ट्रैवल करेंगे तो बीच में एक डेस्टिनेशन आएगा सांची, विच इज 1 hour फ्रॉम भोपाल. सो विल टेक अ हॉल्ट इन सांची for around 1-2 hours so that we can visit Sanchi Stupa on way. And then after visiting Sanchi, कविता, आपका इंटरनेट स्लो है, आवाज नहीं आ रही है. सर बस 1 मिनट, मैं करती हूँ वाईफाई कनेक्ट. ओके. हेलो. Yes, continue. Okay. So day 5th, Jabalpur first destination we'll visit is Dhundadhar waterfall, or which is also famous for its scenic beauty only in the morning. Or after this, धुंधाधर waterfalls के यहाँ पे केबल रॉक करके रोप भी है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, और वहाँ का व्यू आप
ऊपर से देख सकते हो. It's very beautiful. After that, we'll visit the Marble Rock, which is a bit away from Jabalpur, 20 kilometers away, which is also famous for scenic beauty. It is also a river. और जो मार्बल रॉक है वो 100 फीट मतलब बीच में नदी बह रही है और साइड में मार्बल रॉक 100 फीट तक अबाव है, रॉक है. So we'll visit that place, and again then we'll come back to Jabalpur, stay overnight stay. On day 6, we'll travel Jabalpur to Bandhavgarh destination, so which is also 4 kilometer. After reaching Bandhavgarh, we'll visit the destination Bandhavgarh National Park. और नेशनल पार्क विजिट करने के लिए मतलब आपको ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स यू नीड टू ट्रैवल, और वहाँ पे हम जीप सफारी करेंगे ताकि हम वहाँ के कौन सा नेशनल टायर्स. पार्क बताया आपने? बांधवगढ़ नेशनल पार्क सर. बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस लिए फेमस है बांधवगढ़ नेशनल पार्क? फिर रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए सर. जीप सफारी और सर मैं गई हूँ बांधवगढ़. बांधवगढ़ नेशनल पार्क जीप सफारी में हम ट्रैवल करेंगे और इट विल टेक ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स टू ट्रैवल ओवर देयर. तो फिर अगेन, और वहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्ट्स वगैरह है ताकि आप वाइल्ड लाइफ के अंदर ही रह सको और एक्सप्लोर कर सको. एक मिनट कविता, 1824982 वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? सत्संग सुन लग रहा है क्या यहाँ पे? वन 1824982 ऑन योर वीडियो. ये क्लास है, कोई खबरें नहीं चल रही यहाँ पे. 1824982 मेरी आवाज आ रही है आपको? 1824982 ऑन योर वीडियो. करके रखा है. क्या हुआ? क्या कविता, टेल मी. ओके, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एक्सप्लोर कर लिया फर्स्ट डे एंड बैक टू आवर रूम. Overnight stay over there. For day 7 in morning, we'll visit in Bandhavgarh itself Goripuri Dam, which is famous for bird watching and the scenic beauty. Okay. फिर afterwards in afternoon we'll travel to Khajuraho. From Bandhavgarh to Khajuraho, which is 6 or 7 hours from Bandhavgarh. करण ऑन योर वीडियो. 1824982 ऑन योर वीडियो. कोई बिना वीडियो ऑन के बिना बैठेगा क्लास में. Yes. After visiting Khajuraho, overnight stay in Khajuraho itself. Day 8, the first thing we'll do is Khajuraho. We'll visit temples in Khajuraho, which is UNESCO World Heritage Site, and there are all total 25 temples. So that day we'll explore Khajuraho. And डे 8 पूरा इसी में चले जाएगा. फिर डे 9. तो एक मिनट रुको. करण और 1824982 रोल नंबर जो मेरी बात सुन रहे हैं, करण मेरी आवाज आ रही है ना? Actually, वीडियो ऑन करो. sir, actually I am in now job, sir. तो जॉब में क्लास कैसे अटेंड करोगे? Actually सर अभी ब्रेक मिल रखा है सर, मैं 30 मिनट्स का. ओके. तो 30 मिनट में क्या पढ़ लेगा तू? फोकस कर ले जॉब के ऊपर. या कब तक कंटिन्यू? Okay. Day 9 from Khajuraho to Delhi, we have direct flight, so back to Delhi. So. बस हो गया. ये डिस्क्रिप्टिव वे में बनाई गई आइटनरीज है, ये फुल फ्लेज आइटनरी नहीं है जो आपने बनाई है कविता. जैसे पॉइंट उठाया रखा बनाने के लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा डेस्टिनेशन लूं या कैसे जाऊं. नो, इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग.
See, confusing in what way? Actually, tell me that, because you know what, when you are making the itinerary, first of all आप देखिए कि आप मैपिंग करो। सबसे पहले मैपिंग, मैपिंग में देखो कि आपको कौन सा एरिया पहले कवर करने हैं। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, आपको बांधवगढ़ वाला रेंजेस लेना है या आपको ग्वालियर वाली रेंजेस से शुरू करना है, दैट्स अप टू यू। सबसे पहले आपका अराइवल एंड डिपार्चर्स को फिक्स करो, फिर अपने पिन पॉइंट करो पॉइंट्स को कि कौन कौन से डेस्टिनेशन कवर करने हैं। इसकी सैम्पल आइटनरीज गूगल पे मिल जाती हैं सबसे सिंपल वे में, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। गूगल में जस्ट टाइप इट मध्य प्रदेश या भोपाल आइटनरी या इंदौर आइटनरी, अलग अलग नामों से डालो, मध्य प्रदेश के कोई भी नाम से डालो तो अलग अलग सैम्पल आइटनरीज आएंगी। उन आइटनरी को रीड्स करो, उन आइटनरी में जो आइटनरी आपको अच्छी लग रही है उसे रख लो, उसको तैयार करो, उसकी मैपिंग खुद करो। फिर मैप ले लो मध्य प्रदेश का, गूगल पे ही उसको चेक करो कौन सा जगह कहाँ पे है, कौन सी जगह कहाँ पे है, कैसे आइटनरी की रूटिंग बन रही है। साइट सीन के पॉइंट आपको सैंपल ऑफ आइटनरी के अंदर मिल जाएंगे सारे के सारे गूगल के ऊपर ही। ठीक है सर, किस लिए फेमस है क्या है, तो ये सब यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर आल्सो। ये आइटनरी बनाने का प्रोसीजर है, ऐसे आइटनरी बनती है। ठीक ओके है सर। करण, क्या जॉब करते हो आप भाई यहाँ पे डीएलएफ में? सर इसका सर हेड यहाँ सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं सर, ऑल ओवर कहीं कहीं से भी कंट्री से डॉक्यूमेंट आ सकते हैं सर, उसको फ्रॉड पकड़ना होता है सर। फ्रॉड तो नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। आपकी कंपनी कौन सी है? डीएलएफ तो ये काम नहीं करते, डीएलएफ की बिल्डिंग हुई है, कंपनी कौन सी है आपकी? उसके अंदर सर ऑफिडो है सर। ओके ओके गुड। सो क्या टाइमिंग है आपकी वहाँ पे? सर सुबह 9 बजे से सर शाम के 6 बजे तक। ओके और ऑफ कौन सा, संडे ऑफ है, मंडे ऑफ है, सैटरडे ऑफ है? सर सैटरडे संडे ऑफ है सर, टू ऑफ है सर वीकली। वेरी नाइस। सैलरी कितनी मिल रही है आपको? सर अभी सर 14 दे रहे हैं, बाकी सर अभी देखते हैं सर। पीएफ अलग से, इंसेंटिव अलग से का। वेरी गुड, गुड जॉब, अच्छी बात है गाइस। सो आइटनरी के थैंक यू साथ सर। देखिए, आइटनरी का जो है कूलिंग वो आपको इसी सबसे देखना पड़ेगा। सो टुडे एक इसके साथ साथ में हम अपना सब्जेक्ट भी कवर करते चलेंगे। आज हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स में आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। सैलरी के अलावा, इंसेंटिव्स के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कभी अपने कंपनी अपने स्टाफ को देती है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। वो कोई उनकी इंश्योरेंस भी हो सकती है, वो कोई उनको स्पेशल इंसेंटिव भी हो सकता है, कोई उनको ऐसी पेंशन की स्कीम जिसके अंदर उनको बेनिफिट्स हो। सो दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। जो उनकी सैलरी वेजेस के अलावा उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, हो सकता है मॉनेटरी वे में ना हो, हेल्थ कवर हो, हेल्थ इंश्योरेंस के कवर के रूप में हो। ऐसे के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, वो उसे हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। और इसी के रिगार्डिंग मैं आई विल शेयर यू वन स्क्रीन विद यू गाइस, पीपीटी। एवरीबडी ऑन योर वीडियो, कोई अपना वीडियो ऑफ नहीं करेगा। करण को एक्सेप्शनली है, करण कैन ऑफ, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, बिकॉज वो अपने ऑफिस में है। तो फ्रिंज बेनिफिट्स रेफर्स टू द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स provided to employees in addition to the normal compensation paid in the form of wage or salary। इसका मतलब है कि फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो वो रेफर करता है कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयज को, उनको नॉर्मल कॉम्पनसेशन के अलावा। नॉर्मल कॉम्पनसेशन क्या हो सकता है? उनकी वेजेस और सैलरी। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें कॉम्पनसेशन मिलता है, कॉम्पनसेशन हमारा वेजेस या सैलरी के रूप में होता है। उसके बाद में जो हमें एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। मेन फीचर्स क्या क्या है फ्रिंज बेनिफिट्स के, वो भी देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री फॉर्म्स हैं ये सप्लीमेंट्री है, कोई मेन बेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है कि देना ही देना, कंपल्सरी में नहीं आता ये सप्लीमेंट्री में आता है। पेड टू ऑल एम्प्लॉयज, और ये वाले बेनिफिट्स हर एम्प्लॉयज को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 को मिल गया 3 को नहीं मिलेंगे। इक्वली दिस बेनिफिट्स विल बी शेयर टू एवरी एम्प्लॉयज, चाहे वो मैनेजर हो, क्लरिकल लेवल पे हो या एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो। पेड टू ऑल एम्प्लॉयज,
इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन है ये। डायरेक्ट कॉम्पनसेशन तो सैलरी और वेजेस आती है, ये उसके अलावा दिए जाते हैं, तो ये इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन है। हेल्प राइज द लिविंग ऑफ कंडीशंस, ये हेल्प करते हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और ऊपर करने के लिए। अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा कोई और बेनिफिट्स मिलता है, तो उससे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का सुधार होता है एम्प्लॉयज का हमेशा ना, तो ये उसको करता है। मे बी सिक्योरिटी और वॉलंटरी, और मतलब ये मोटिवेटेड भी कर सकते हैं और एज ए वॉलंटियर भी उनको दिया जा सकता है ये फ्रिंज बेनिफिट्स। इसकी जरूरत क्या क्या है इसके बेनिफिट्स की? एम्प्लॉयज की डिमांड्स है कि सैलरी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स होनी चाहिए कंपनी के अंदर, ताकि हम लोग सब लोग उसको प्रोसेस में ला सकें या उसको और ज़्यादा कर सकें, क्योंकि बाकी कंपनी दे रही है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। एम्प्लॉय की डिमांड्स पे फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ट्रेड यूनियंस की डिमांड है, आपको पता है कि हर जितने भी फैक्ट्रीज या कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ट्रेड यूनियन बन जाती हैं। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय के हितों की रक्षा करना, एम्प्लॉय के साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गलत ना करे, तो एक यूनियन बना के उसके अंदर अपने आप को वो रजिस्टर कर लेते हैं। और ट्रेड यूनियंस कहती है कि एम्प्लॉयज को ये सब चीजें भी मिलनी चाहिए, तो इन लोगों की डिमांड्स है, तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स उसके लिए यूज होते हैं। एम्प्लॉयर प्रेफरेंस, एम्प्लॉयज की प्रेफरेंस भी डिपेंड करती है। कोई कंपनी अगर फ्रिंज बेनिफिट्स को प्रोवाइड करती है और दूसरी कंपनी फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करती है, तो एम्प्लॉयज की जो प्रेफरेंस रहती है वो उन कंपनीज की तरफ रहेगी जिस कंपनी में जहां पे कॉम्पनसेशन के साथ साथ फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जा रहे होंगे। एज ए सोशल सिक्योरिटी, इसको वो एक सामाजिक सिक्योरिटी के हिसाब से भी यूज करते हैं कि जैसे कि हमारा पीएफ कटना या इंश्योरेंस मिलना कंपनी से, तो ये उनकी एक सोसाइटी सिक्योरिटी भी है कि भाई हमारे को सिक्योर भी कर रही है कंपनी। सो ये एक फ्रिंज बेनिफिट्स का पार्ट बनेगा। टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशंस, और इससे ह्यूमन रिलेशंस भी इम्प्रूवमेंट्स होती है, आपस में तालमेल अच्छा बनता है। ऑर्गेनाइजेशंस और वहां पे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका आपस में तालमेल अच्छा रहता है, मॉरल वैल्यूज बढ़ते हैं कि ये कंपनी, जो भी ये कंपनी है वो अपने साथ साथ, अपने फ्यूचर के साथ साथ वो हमारे इन सब हितों का भी ख्याल रख रही है, तो इससे मॉरल वैल्यू या ह्यूमन रिलेशंस भी एक्स्ट्रा बढ़ते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर। और फिर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स क्या चीज है। टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, फ्रिंज बेनिफिट से हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। अगर हम उन्हें ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा उन्हें फ्रिंज बेनिफिट्स देंगे तो वो और ज्यादा लॉयल्टी से कंपनी के लिए काम करेंगे, बिकॉज दे विल फील मोर सिक्योर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, सो दे कैन मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो उससे प्रोडक्शन या कोई भी काम करने का तरीका का उसकी क्वालिटी अच्छी बढ़ेगी। कंपनी विल गेट ए प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स का हिस्से में से ही उनको फ्रिंज बेनिफिट्स जाएंगे। सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट चीज। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज, जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया है कि इसके साथ साथ में एम्प्लॉयज को सिक्योर रहता है कि भाई वो सेफ है। वो कंपनी में अगर मेरे को ऐसा कुछ हो गया, कुछ इन केस कुछ ऐसा हो, तो मेरी हेल्थ पॉलिसी हुई है या मेरे को पीएफ है या मेरे घर वालों को कॉम्पनसेशन इतना अमाउंट मिलेगा, सो ही फील सिक्योर इन दैट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर। टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज, इसके अंदर अपने एम्प्लॉयज की जो हेल्थ है उसकी बड़ी प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस दे दी गई है, कोई लाइफ इंश्योरेंस दे दी गई है। सो टू प्रमोट एम्प्लॉयज वेलफेयर, और एम्प्लॉयज के वेलफेयर को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए फ्रिंज बेनिफिट्स को यूज किया जाता है। टू क्रिएट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि आप हमारी कंपनी का पार्ट है और आप हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है, तो इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, जिससे कि एम्प्लॉय को भी उस कंपनी में, उस जगह में काम करने में मजा आता है, ही फील कि ये मेरा अपना काम है। अगर कंपनी मेरे लिए इतना कुछ सोचती है, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो है कि जब हम किसी को अपने होने का एहसास दिलाते हैं, तो इससे वो चीज आती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिलने से। टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस लीगलाइजेशंस एंड रिटेलिंग द फ्रिंज बेनिफिट्स, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो कि फ्रिंज बेनिफिट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब आपको पूरी करनी पड़ती हैं, उसको रिलेट करने के लिए ये बेनिफिट्स के इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूरे किए जाते हैं। फिर अब आते हैं कि इसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड, इसमें
फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर जैसे पेमेंट फॉर टाइम, अगर आपने किसी कंपनी में 25 साल दिए हैं, उसके बाद अगर आपको 25 साल के बाद आपको कॉम्पनसेशन में अगर वो पेंशन लगा रहे हैं, तो वो आपके काम के लिए नहीं, आपने जो जितना टाइम स्पेंड किया है उसके लिए आपको उसका फ्रिंज बेनिफिट्स का हिस्सा दिया जा रहा होता है। एम्प्लॉय सिक्योरिटी, जो हम लास्ट ही स्लाइड्स में डिस्कस किया है हम लोगों ने, कि एम्प्लॉय सिक्योर फील करता है जब कंपनी ऐसे कुछ तरह के ऐसे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयज को, सो ही विल फील सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तो वो अच्छे से काम करता है। सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी उसकी सेफ्टी और हेल्थ का जब कंपनी ख्याल रखती है, प्रॉपर मेडिकल चेकअप वगैरह किए जा रहे हैं, हर बार उनको अच्छी से उनको टेक केयर की जा रही है, उनको काम के साथ साथ में उनको प्रोटेक्शंस भी दी जा रही हैं, सो दैट इज आल्सो फ्रिंज बेनिफिट्स व्हिच आर गिविंग टू द एम्प्लॉयज। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन, ऑब्वियसली जो लोग काम करते हैं उनको उसके अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन मिलता है। हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस मिल गई, हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई, कोई हेल्थ के लिए कोई उनको ऐसे पैकेज दे दिया, कोई ऐसा कुछ भी। वॉलंटरी अरेंजमेंट्स होते हैं सम टाइम, ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो पैसे के रूप में नहीं आके कुछ वॉलंटरी के रूप में भी होते हैं उनके साथ, जैसे कोई कोई ब्लड का वो एक वो लगा दिया, शिविर लगा दिया कि आप जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं इनके साथ आपको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से ब्लड बैंक से आपको फ्री में ब्लड मिलेगा, काइंड ऑफ वॉलंटरी सर्विस में भी उनको उनको पार्टिसिपेट करवा दिया जाता है। वेलफेयर एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज, उनको जैसे काम के दौरान उनको योगा करवा रहे हैं, काम के दौरान उनको जिम खोला हुआ है कहीं ना कहीं, वहां पर जिम का हिस्सा है, कुछ उनको खेलने के लिए शतरंज चेस वगैरह दे रखी हैं, जिससे कि उनकी रिक्रिएशन फैसिलिटीज उनको मिलती रहे, जिससे वो वेल बीइंग रहे और हेल्दी रहे। ओल्ड एज रिटायरमेंट्स बेनिफिट्स, जब आदमी अपना पूरा समय किसी कंपनी को देके वहां से रिटायर होता है, तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने पूरा एंटायर अपना यंग एज पूरा उस कंपनी को दिया है, भले ही उसके बदले में उन्होंने अपनी सैलरी या कॉम्पनसेशन लिया है, बट टाइम हैव स्पेंड विद द ह्यूज टाइम विद दैट कंपनी। सो ओल्ड एज में वो बंदा कोई काम करने के काबिल तो नहीं होता है, इसलिए दैट्स कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द फ्रिंज बेनिफिट्स की बात करूं, ये इन्हीं की जिम्मेवारी होती है कि वो उसको जब वो रिटायरमेंट के दौरान को क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं, चाहे वो पैसे में दे रहे हैं या कोई पेंशन में दे रहे हैं या कोई ऐसे हेल्थ पॉलिसी दे रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सैलरी एंड वेजेस। आइटम कवर्ड इन फ्रिंज बेनिफिट, जो कि कौन कौन सी आइटम्स है वो कवर की जाती हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर। एज पर द फाइनेंस विल, fringe benefits shall be demand to have been provided if the employer has incurred an expense or made any payment for purpose of this। अब अगर कोई कंपनी का मालिक इन चीजों में पैसे खर्च करके दे रहा है तो समझो वो इसमें कवर की जाएंगी। एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयज का जो एंटरटेनमेंट है करवाते हैं कंपनीज, कहीं घुमाने ले जाती है, कुछ पैकेज वगैरह दिलवाती है, वो भी फ्रिंज बेनिफिट्स का पार्ट है। फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के टाइम में जो भी उनको कोई मिठाई के डिब्बे, कोई बोनस मिल रहा है, एनीथिंग विच गिवन बाय द कंपनी, वो भी इसके अंदर कवर किया जाता है। जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, गिफ्ट्स बांटे जाते हैं, वो भी फ्रिंज बेनिफिट्स के अंडर आते हैं। यूज ऑफ क्लब फैसिलिटीज, जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, वहां पे क्लब फैसिलिटीज होती है, उसको यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए एम्प्लॉयज को देते हैं, तो वो भी फ्रिंज बेनिफिट्स का हिस्सा है। Provision of hospitality for every kind of person whether we have a food and beverage, कंपनी का ऐसा कोई ऐसा एरिया जहाँ पे वो सबको अलाउ करते हैं अपना खाना पीने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रूप में, सो वो भी इसी के अंदर कवर किया जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ ए गेस्ट हाउस, जो भी गेस्ट हाउस की मेंटेनेंस है वो भी उसके अंदर कवर की जाएगी। कॉन्फ्रेंसेस जो की जाती हैं वो भी फ्रिंज बेनिफिट्स के हिस्से के अंदर आती हैं। एम्प्लॉय के वेलफेयर की बात की जाए वो भी इसी के अंदर आएगा। यूज ऑफ हेल्थ क्लब, कंपनी का कोई भी स्पोर्ट्स हो या सिमिलर, कंपनी जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करवा रही हैं, चाहे वो हेल्थ क्लब प्रोवाइड करवा रही हैं या स्पोर्ट्स हो, उसके सिर्फ जो भी एंटरटेनमेंट किया जा रहा है, दैट इज आल्सो कवर्ड इन फ्रिंज बेनिफिट्स, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय विप्रो, जैसे एक मैंने विप्रो का एग्जांपल लिया है, इसके अंदर कैश कॉम्पनसेशन देती है वो, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलबींग बंदा फील करता है। डेवलपमेंट और एजुकेशन में भी वो जो भी आपके फर्दर आप पढ़ना चाहते हैं विप्रो के थ्रू, तो वो पेमेंट करती है। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए विप्रो उस पर काम करती है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्रोग्राम, एम्प्लॉयज का एक स्टॉक परचेज प्रोग्राम होता है कि ये विप्रो के शेयर लेने में 5% उनको छूट होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट विप्रो देती है अपने एम्प्लॉयज को। फ्रिंज बेनिफिट 5% डिस्काउंट देती है विप्रो अपने स्टॉक पे, अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी खरीदो आपको, जो इफ यू आर विप्रो स्टाफ तो सीधा जो भी प्रोडक्ट विप्रो का होगा उसमें सीधा उनको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
लीव ऑफ एब्सेंस प्रोग्राम, ऐसे कोई प्रोग्राम्स जो उनकी छुट्टियों के हिसाब से बनाए जाते हैं, एब्सेंस में होते हैं, दैट इज आल्सो फ्रिंज बेनिफिट जो कि इसको देती है विप्रो। रीलोकेशंस प्रोग्राम, विप्रो आल्सो प्रोवाइडिंग रीलोकेशंस, अगर आप दिल्ली में हैं और त्रिपाठी गोरखपुर में है, सो कंपनी का गोरखपुर में प्लांट है, तो उसमें अगर आप रिक्वेस्ट करें कि आई हैव टू गो टू माय नियर टू माय होम, सो वो रीलोकेशंस प्रोग्राम्स के अंडर आपको ट्रांसफर देते हैं, और वो भी एक आपको फ्रिंज बेनिफिट्स ही है। और रेलवे हाफ फेयर सेशन टिकट्स, वो आपको साल में 2 बार या 3 बार कुछ इनका रहता है, आप कहीं भी ट्रैवल करें अपने फैमिली साथ, उसको में हाफ टिकट का वो रेलवे का पे खुद करती है विप्रो। विप्रो कुछ फैसिलिटीज देती है अपने एम्प्लॉइज को। फैमिली सर्विस एरियाज ऑफ चाइल्ड केयर, और बच्चों को, जैसे जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं और विप्रो के स्टाफ हैं अगर आप, तो आपको उस हिसाब से भी आपको कैश इंसेंटिव दिया जाता है अपने बच्चों की टेक केयर करने के लिए। होम केयर एंड एल्डर एड, अगर आपके घर में बड़े हैं, कोई बुजुर्ग भी रहे हैं, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है विप्रो, अगर आप विप्रो के एम्प्लॉइज हैं। बोनस ऑफ रिकमेंडिंग न्यू एम्प्लॉइज, अगर आप किसी, जैसे त्रिपाठी विप्रो में काम कर रहा है और त्रिपाठी ने किसी और को रेफर किया वहां जॉब करने के लिए, तो विप्रो विल आल्सो गिव द कैश इंसेंटिव टू सैलरी इंसेंटिव टू हिम, अगर वो सिलेक्ट होता है तो। स्पेशल कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस, स्पेशल कंडीशन की इंश्योरेंस जो है, जो कि अच्छी इंश्योरेंस है, वो सब प्लान्स विप्रो ऑफर करता है। विप्रो ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स देते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे विप्रो को उठा के लाया हूं। सिकनेस एंड एक्सीडेंट इनकम प्लान, कोई बीमार हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सीडेंट्स हो गया है, तब भी आपको इनकम आती रहेगी, ऐसे प्लान्स विप्रो देती है। दिस इज फॉर टुडे। इसमें कोई चीज समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क मी एनीबॉडी, जितने भी बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हैं लाइन में। फ्रिंज बेनिफिट्स पता सर ये लग गया क्या विप्रो चीज है है? क्या? बेटा विप्रो आईटी विप्रो की है क्या सर? विप्रो आईटी का एक सेगमेंट है, यस आईटी सर, डोमेन में वो काम तो पता करती है लग ये कंपनी। बहुत बहुत बड़ा नाम है विप्रो का, आईटी डोमेन में है ये कंपनी। और विप्रो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है आईटी में, जो भी नए इनोवेशंस है उसमें ये पार्टिसिपेट करती है। बहुत बड़ा ब्रांड है विप्रो, बहुत कुछ बनाता है और बहुत कुछ आईटी के सोल्यूशन से, आईटी सोल्यूशन का इट्स मेन आईटी सोल्यूशंस कंपनी। जरूरी नहीं विप्रो में सिर्फ इंजीनियर ही काम करते हैं, एमबी वाले भी काम करते हैं, हॉस्पिटलिटी वाले भी काम करते हैं इसके अंदर। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि विप्रो में सिर्फ इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, वो उनका बेसिक डोमेन कोड है, लेकिन उनके जो ऑपरेशंस मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, वो टेक्निकल से आते हैं, कुछ एमबीए करके आते हैं, कोई सेल। आपको लगता है विप्रो में सेल्स नहीं होती? विप्रो में भी सेल होती है। अलग अलग कंपनीज अपने अपने सॉफ्टवेयर को सेल करने की कोशिश करती है क्लाइंट को, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को, तो वो भी सेल्स का पार्ट है। सो दैट इज कॉल्ड विप्रो। फ्रिंज बेनिफिट समझ आ गए हैं सबको? 1824,982 समझ आया फ्रिंज बेनिफिट्स क्या चीज है? जी सर। क्या चीज होता है फ्रिंज बेनिफिट, बताओ। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिंज बेनिफिट्स? माइक ऑन करो। फ्रिंज बेनिफिट। बोलो। फ्रिंज सर एक्सप्लेन। सर जो कंपनी के तरफ से एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट। प्रिया, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? सैलरी और इंसेंटिव के अलावा जो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है ना, क्या बोलते हैं उनको, कस्टमर को, वो कस्टमर नहीं, जो उनके अंडर काम करते हैं उनको। कविता महंत। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कोई बेनिफिट मिलना इस फ्रिंज बेनिफिट्स। गिफ्ट भी हो सकता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है, और एक्सेट्रा। सर सौरभ त्रिपाठी। सर जो मतलब सैलरी और इंसेंटिव के अलावा जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है उनको, जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, और उसके अलावा जो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें से जो शेयर उन्हें देती है, जो भी मतलब प्रोवाइड करती हैं, तो उसे कहते हैं सर।
Fringe benefits. Karan, any idea what you think about the fringe benefits? सर ज़्यादा आइडिया तो है नहीं सर, क्योंकि मैंने बीच में से लगाई, बट सर जो मैंने सुना है मैं उसको उसको जरूर से बता सकता हूँ सर। लाइक जैसे सर आपने काफ़ी सारे जैसे बेनिफिट्स जो एम्प्लॉय जो मांगता है सर, लाइक सर टाइम पर सैलरी मिल जाए, या सर उसको हर फेस्टिवल पे सर कुछ ना कुछ उसे बोनस मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, लाइक सर हर कोई सर ये चाहता है सर, आई थिंक। और सर उसको फैसिलिटी सर इंश्योरेंस, लाइक सर इंश्योरेंस हो गया, होम सेफ्टी भी होगी सर। एंड सर जो हमारी सर जो लाइक सर एक जो एम्प्लॉय होता है सर, उसको सर एक जैसे सर आने जाने में दिक्कत होती है सर, इसको प्रोवाइड की जाती है सर, स्पेशल गाड़ियाँ उनको प्रोवाइड की जाती है। आई थिंक सर ये बेनिफिट्स हो सकते हैं सर। आपका पीएफ कटता है? हाँ जी सर। ये फ्रिंज बेनिफिट्स है। जी सर। वेरी गुड। सो एवरीबडी इज अवेयर अबाउट कि व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट्स। गाइस, फ्रिंज बेनिफिट्स हमेशा सिंपल वे में याद रखना कि सैलरी के जो कॉम्पनसेशंस हैं, इसके अलावा कंपनी जो भी मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी वे में जो भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, वो फ्रिंज बेनिफिट्स का हिस्सा होते हैं। इसमें कई कुछ चीज़ें आ सकती हैं, फेस्टिवल्स के आपके सेलिब्रेशंस, गिफ्ट्स आ सकते हैं, कूपन बोनस आ सकते हैं, कोई स्पेशल तरीके से आपको कहीं वेल केयर किया जा रहा है, दैट इज़ आल्सो इट्स इन्वॉल्विंग ओवर हियर। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने आपको विप्रो का एग्जांपल दिया कि वो तो बहुत कुछ दे रहा है एज ए फ्रिंज बेनिफिट्स। स्टॉकिंग परचेजिंग में 5% डिस्काउंट्स की ऑफर देता है, और ओल्ड एज के लिए भी आपको कुछ ना कुछ देता है, आपका चाइल्ड केयर के लिए भी कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो ये सब करने का मतलब ये है कि कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है और एम्प्लॉय विल फील वेरी मच हैप्पी, सो दे कैन वर्क इन दैट कंपनी। दिल से काम करते हैं। जब कंपनी इतना कुछ आपको दे रही होती है तो कहीं ना कहीं आप भी एक तरह से सेटिस्फाइड होते हैं और आप सिक्योर होते हैं कि अगर मैं इस कंपनी में 20 साल काम करूंगा तो कंपनी मेरे को 20 साल का एक रिवॉर्ड जो है, वो चाहे पेंशन प्रोग्राम्स के अंदर हो या आपके कोई ओल्ड केयर के उनके प्लान्स हैं उसके अंदर आप आ जाएंगे। सो यू विल फील मोर सिक्योर कि कंपनी है, कंपनी देख लेगी। और इन सब चीज़ों को करने के लिए इनका मतलब मोटिव है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए मोटिवेट रहे। जब एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए मोटिवेट रहेगा तो एम्प्लॉय दिल से काम करेगा, और जब दिल से काम करेगा तो वो प्रोडक्शन अच्छी काम करेगा, चाहे वो प्रोडक्शन में है या मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विस में है, तो उसका आउटपुट जो है दैट विल कम वेरी स्मूथली एंड वेरी नाइस, राइट, इन दैट वे। सो ये सारे बेनिफिट्स इट्स कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स, जो कि इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स का हिस्सा होते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। किसी के मन में कोई शंका है? 18249882 बहुत स्माइल कर रहे हैं। आपकी जो स्माइल है, सो लेट एवरीबॉडी टू शेयर। क्या बात है, इतने खुश कैसे हैं आज? अच्छी बात है, खुश आना चाहिए। एवरीबॉडी हैज टू बी स्माइल। हमें भी हंसाइए, बाकी सब लोग भी वेट कर रहे हैं हंसने का। माइक को ऑन करो और हमें भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। बोलो बोलो, टेल व्हाट हैपेंड। क्या अकेले बोल रही है बिना माइक ऑन करके?